جو ذکر ہے وہ ہے تلبیہ، جو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی ذکر سب سے زیادہ مقبول ذکر ہے۔ جس وقت سے احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے آدمی جب اس کو پڑھتا ہے اس تلبیہ کو، تو اس وقت سے وہ محرم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں پر حج عمرہ پر جانے والوں کے لیے مولانا حذیفہ صاحب نے انہیں وہ تمام چیزیں جو عمرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو سنت ہے، واجب ہے، وہ تمام چیزوں کو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے۔ اور جو لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں انہوں نے بہت سارے سوال کیے، اس کے جواب بھی انہوں نے دیے، اور وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان سے ضرور جاننا چاہیں گے۔ سر، آپ کا استقبال ہے بہار آج کل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال سر کہ جو حج ہے، جو ہر سال بقرعید یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں فرض حج پورا کرتے ہیں، تو یہ جو عمرہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ یہ سنت ہے، نفل ہے؟ عمرہ تو نفلی عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا ہے تو یہ سنت اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی تاکید ایسی نہیں ہے۔ اگر کر لیا جائے، جیسے نفل عمل ہم کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نفل نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اتنی استطاعت ہے، تو اللہ کے گھر میں جا کر عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ بہت ہی مبارک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق دے۔ تو اس کی کوئی پابندی اسلام نے نہیں رکھی ہے عمرہ کرنے کی، کسی طرح کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ سر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرہ کو 4 مرتبہ کیا تھا، لیکن سنت یہ ہے کہ ایک بار کے سفر میں حج عمرہ جو ہے وہ ایک بار کیا جائے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ حج چونکہ حج تو فرض ہے، چونکہ قرآن پاک سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن پاک میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ وہاں جا کر واپس آنے کی، یہاں اپنے بال بچوں کے اخراجات کو رکھ کر اور جا کر آنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور وہ صلاحیت مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی ہو کہ وہ صحت بھی ان کی ایسی ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ باقی مزید اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ سنت ہے، ثواب ملے گا، لیکن ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ باقی عمرہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک حج فرض کرنے کے بعد دوبارہ حج کرنے میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں، اسی طرح عمرہ میں بھی کوئی قید نہیں ہے، ایک بار کرے کوئی 10 بار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی اور انسانیت کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو نشہ بھی ہوتا ہے کہ سال میں 4 مرتبہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، پڑوس میں غریب بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو وہ علاج کے لیے پیسے کی وجہ سے محتاج ہے، اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، تو اسلام نے یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ جو ہم کو اچھا لگتا ہو وہ ہم کریں، بلکہ جو وقت کا تقاضا ہو۔ اسلام اسی کو کہا گیا کہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ سر، جو عمرہ پہ جاتے ہیں جو لوگ، تو وہ اپنے مرحومین کے لیے جو عمرہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا جو لوگ انتقال کر گئے ہیں یا جو حیات ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، بدل عمرہ جو؟ جی ہاں، بالکل بالکل، ابھی میں نے یہ بات یہاں پر رکھی باضابطہ کہ جو مرحومین انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے اور حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمارے والد حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور ہم نے لیکن اگر ہم نے اپنا پہلے کر لیا ہے، تب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم والد کی طرف سے تو حج کر لیں جا کے اور اپنا حج نہ کریں، تو یہ غلط ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ عمرہ میں بھی وہی بات، اور عمرہ میں بھی وہی ہے کہ پہلے اپنا عمرہ کر لیں اور اس کے بعد والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، جن کی طرف سے چاہیں کریں۔ اور یہ میں نے یہ بات ابھی رکھی کہ ماں باپ کا حق ہے، انہوں نے اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں کہ جب ہم اس گھر میں پہنچ گئے ہیں، موقع میسر ہے، تو ماں باپ کی طرف سے تو ضرور کم سے کم عمرہ کر لینا چاہیے۔ سب سے جو بہتر ذکر ہے یا جو سفر پہ جیسے ہی شروع ہوئے تو زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ حج یا عمرے کے سفر میں جو سب سے افضل ذکر اور سب سے زیادہ ثواب والا جو ذکر ہے وہ ہے تلبیہ،
जो तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसको तलबिया कहा जाता है। और यही ज़िक्र सबसे ज़्यादा मकबूल ज़िक्र है। जिस वक्त से एहराम पहनने के बाद 2 रकत नमाज अदा करके आदमी जब इसको पढ़ता है इस तलबिया को, तो उस वक्त से वो मुहरिम हो जाता है और फिर उस वक्त से वो इसका विर्द करता रहे, सोते उठते चलते फिरते बाआवाज़ बुलंद धीरे, लेकिन औरतें अपनी आवाज़ में धीरे पढ़ें और मर्द जो है आप बुलंद आवाज़ से इसकी तलबिया का विर्द करता रहे। यही इस दौरान में पूरे तवाफ़ में और पूरे उम्रे में इसी का ये है। अगर किसी के साथ अगर महरम नहीं है, जिन औरतों के साथ, तो क्या दूसरी औरतें उनका बाल कतर सकती हैं? हाँ, औरतें कतर सकती हैं। हाँ। गैर महरम मर्द नहीं कतर सकता, लेकिन औरतें कतर सकती हैं। औरतें एक दूसरे का कतर सकती हैं और कतर के वो हलाल हो जाएंगी वो औरत एहराम से, उसमें कोई मसला नहीं है। मर्द आपस में एक दूसरे का मूंड सकते हैं। औरत के अगर कोई महरम है तो वो महरम काट लें और नहीं तो कोई दूसरी औरत काट लें। हालत एहराम में क्या क्या चीज़ें हैं जो जिस पर दम लागू हो जाता है? देखिए, हालत एहराम के अंदर जो है 2 तरह की चीज़ें हैं। बाज़ तो जो छोटी गलतियां होती हैं उसके अंदर सदका होता है, जो जाने अनजाने में अचानक से एक आध बाल वज़ू करते हुए या फिर और कुछ इस तरह से चेहरे पे हाथ फेरते हुए कोई बाल उखड़ जाए, तो इसमें सदका देना लाजिम होता है। कितना? वो सदक़े की कोई क़ैद नहीं है, आप अपनी बसात के हिसाब से, लेकिन वो हुदूद हरम में ही वहीं के गरीब को आप सदका देंगे, हरम के अंदर के। और बाकी कुछ गलतियां जो हैं जो मौलाना साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोग दम के बारे में समझ नहीं पाते हैं। कई जगह सुनते हैं कि अगर मच्छर भी उनके हाथ पे बैठ जाए, मक्खी भी बैठ जाए, या कुछ भी, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी बैठ जाए और अगले उसने मार दिया, उनके हाथ से वो दब गया, मर गया, तो वो भी दम है, ऐसा सुनते हैं हम। लेकिन इसकी क्या हकीकत है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग जान लें ताकि उनसे वो चीज़ ना हो, वो गलती ना हो? हाँ, दम जो है ये हकीकत है कि बाज़ाब्ता इसको कुरान पाक में कहा गया है कि जब आप एहराम की हालत में अल्लाह के घर में दाखिल हों तो फिर वहाँ पर जो है वहाँ की किसी एक घास को भी उखाड़ना आपके लिए जायज़ नहीं है। और इसी तरह किसी कीड़े मकोड़े को मारना, यानी कत्ल, और वो कहा गया फ़ला रफ़सा वला जिदाल फ़िल हज, के लड़ाई झगड़ा या किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, ये बिल्कुल हराम है। वो कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, कोई परिंदा कोई ना हो, यहाँ तक कि मुहरिम के लिए उसकी तरफ इशारा करना भी, कि एक आदमी शिकार कर रहा है, वो हालत एहराम में नहीं है, वो शिकार कर रहा है, और दूसरा एहराम की हालत में उसने कहा वो चिड़िया बैठी हुई है, देखो उस पर निशाना लगाओ, तो अगर वो इशारा भी करता है तो उसके ऊपर दम वाजिब होगा। इसलिए कि न तो कत्ल करना और न कत्ल करने में किसी तरह से भी इशारा करना या मददगार बनना, तो इसमें दम वाजिब होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब वो चेहरा ढक के आप सो गए, जी हाँ, चेहरा ढक के सो गए तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। तो कभी हाँ, अगर चेहरा को बाज़ाब्ता अगर चंद सेकंड के लिए एक अमल कसीर कलील और अमल कसीर जो होता है, अमल कलील के मकदार यानी थोड़ी देर के लिए गया था फिर फ़ौरन याद आ गया हटा लिया, तब तो ठीक है। लेकिन मुस्तकिल अगर आप हवा के झोंका से हवा के झोंके से आ गया तो भी उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ाब्ता कसदन अगर आपने चेहरे का पर्दा नशी है जो बिल्कुल चेहरा छुपाती हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए मसला है ना। वो मैंने यहाँ पर अभी बात कही थी, ये जो आपने कैप पहन रखा है, इस तरह का बना हुआ बाज़ाब्ता मिलता है बाज़ारों में, तो उनके लिए हुक्म यह है कि ये कैप को पहन लें। और देखिए ये कैप इस तरह से जी होता है जी। और इस कैप के बाद फिर वो जो उनका निकाब है वो ऊपर से इस तरह से वो इसके ऊपर डालेंगी। हाँ। तो इस तरह डालने से चेहरा भी छुप गया और चेहरे में कपड़ा नहीं सटा हमारे, क्योंकि ये रोक रखता है, तो ये मिलता है। शर्त यह है कि अहमियत लोगों के अंदर नहीं है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि अल्लाह के घर में मैंने ये बात शुरू में रखी थी कि पर्दा है। बहरहाल अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए फ़र्ज़ किया है, वो चाहे काबे में हो, मदीने में हो, चाहे अपने घर में हो, पर्दा हर हाल में औरतों के ऊपर फ़र्ज़ है और ज़रूरी है, लिहाजा उसका अहतमाम करना। जिस पॉइंट से आपने शुरू करने की बात कही, तवाफ़ करने की, जहाँ से शुरू करेंगे, उस पॉइंट से पहले जो दुआ आपने बताई जहाँ रब्बना आतैना पढ़ते हैं, जी, तो उसके लिए आप कौन से पॉइंट से शुरू करना है लोगों को जो उम्रा के लिए चक्कर लगाएंगे, तवाफ़ करेंगे,
तो तवाफ का पॉइंट क्या वो बता तो रहे थे आप? वो हजर असवद कहा अस्वद, जाता है। जी। वो हजर असवद है, एक पत्थर है जो काबे के कोने में दरवाज़ा, जो बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है उसके साइड में जो कोना है जिसको हजर असवद कहा जाता है, वहाँ पर लगा हुआ है। ये सब तो लोग जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उसके पहले जो दुआ आपने बताई, जो एक चक्कर लगा लिया और जो उस पॉइंट पे आए, किस पॉइंट, वो रुकने यमानी कहलाता है। वो रुकने यमानी कहलाता है जो हजर असवद से पहले वाला कोना है काबा का। वहाँ पर जब आप वहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इस दुआ की तलकीन की गई है और इस दुआ की फजीलत है, लिहाजा इस दरमियान में जितनी दफ़ा भी हो सके इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और आप बता भी रहे थे कि रुख हमेशा सामने का रख के ही तवाफ़ करना है, तो उस दौरान जो ज़िक्र करेंगे, लोग चल रहे हैं तवाफ़ कर रहे हैं लेकिन कुछ तो पढ़ते रहेंगे, तो क्या ज़िक्र बेहतर होगा, अफजल होगा, जो कम भी जानते हैं? मान लें जिनको दुआ याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं, जिनको कोई दुआ याद है, वैसे लोग किस तरह का ज़िक्र करेंगे? देखिए, इसमें एक तो ये है कि अपनी ज़बान में आप दुआ मांगते रहिए, जो दुआएं याद हैं उनको दुआ को पढ़िए, वो भी ऐसा याद हो कि थोड़ी बहुत आपको समझ में भी आती हो, थोड़ी तो तोते की तरह ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रटा हुआ कटोरे कटोरे वाली दुआ हो, बल्कि थोड़ा आपके समझ में आती हो कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो दुआएं याद नहीं है तो फिर अपनी ज़बान में आप तो जैसे यहाँ नमाज़ों में दुआ मांगते हैं या करते हैं, जो कुछ भी मांग सकते हैं दीन के लिए, दुनिया के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने पूरे इलाके के लिए। तीसरे कलमे का जो जिक्र है, हाँ, तीसरा कलमा भी है कि जब दुआ मांग कर फिर इसी दौरान में आप तीसरा कलमा पढ़िए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो तीसरे कलमे की भी फजीलत है, तवाफ़ के दौरान इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह इस्तग़फ़ार है, चौथा कलमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो ये जो है तीसरा कलमा और चौथे कलमे का भी विर्द हो। अब इसमें कोई मखसूस नहीं है कि कितनी देर पढ़ा जाए, जिस तरह से आपको बशाशत हो और सहूलत हो उस हिसाब से आप इसको पढ़ते रहिए। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये बहुत लंबी गुफ्तगू है और बहुत सारी तफसील से और बात हो सकती है, लेकिन हम एक आखिरी सवाल ज़रूर मौलाना साहब से कहेंगे कि हमारे नाज़रीन को अगर कम लफ्ज़ों में आखिरी पैगाम के तौर पे कुछ बताना चाहें, जो हज उम्रा पे जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ और इस वक्त हर जगह मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ बार बार कि अल्लाह, उम्रा जो है वो नफली इबादत है, सुन्नत है, नफली अमल है। लिहाजा वो जो अमल जिस मकाम का है उसको वहीं तक रखा जाए, और हज जो है वो फ़र्ज़ है। अगर दौलत और माल और सलाहियत किसी के पास है तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं उम्रा ऐसे लोगों के लिए ख़तरा भी ना बन जाए कि वो एक दफ़ा उम्रा करके आ जाएं और फिर सोचें कि मक्का मदीना तो हमने देख ही लिया, तो अब चलिए देखा जाएगा फिर, और इस चक्कर में फिर उनकी मौत आ जाए और आखिरी घड़ी आ जाए और दुनिया से चले जाएं। तो याद रखें कि अगर हज फ़र्ज़ है तो फिर हज फ़र्ज़ ही उनको करना है। उम्रा उसकी वो किफ़ायत नहीं कर सकता और उम्रे से वो उनका काम पूरा फ़रीज़ा अदा नहीं होगा। हाँ, अगर ये पुख्ता इरादा कर रहे हैं कि नहीं भाई हम हज भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक दफ़ा उम्रा कर भी लें, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ट्रेनिंग हो जाए तो इस नीयत से कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मुशाहिदे में बात आ रही है वो यही आ रही है कि बहुत सारे लोग जिनके पास लाखों की प्रॉपर्टी है, लाखों रुपए हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो भी उम्रा करके शॉर्टकट मारने के चक्कर में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि बस हम उम्रा करके मेरा काम चल गया। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो जिनके अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है, जिनको इतनी इस्तिताअत दी है, और याद रखिए कि अगर आपके पास इतना पैसा हज के महीने में, यानी इतना पैसा है कि जिससे हज किया जा सकता था और हज का महीना भी आपके ऊपर से गुज़र रहा है, और फिर आपने हज नहीं किया और हज के महीना गुज़रने के बाद आपका वो माल ख़त्म हो गया या ज़ाय हो गया या आप इंतकाल कर गए, या वो माल, बिज़नेस है, इंसान दुनिया में कभी नुकसान कभी नफ़ा में रहता है, तो अगर वो माल ज़ाय हो गया तो आप गुनहगार हुए। आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका था, आपने उस फ़र्ज़ को टाल दिया, लिहाजा कल क़यामत के दिन आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को जहन नशी करना चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में अगर है तो पहले साल, और उसमें कोई कील काल नहीं। एक चीज़ मैं और रख देना चाहता हूँ, चूँकि माशाल्लाह आपका ये चैनल लोगों तक पहुँचता है,
کہ حج میں ایک چیز کو لوگ اور رکاوٹ بناتے ہیں اور وہ ہے بیٹیوں کی شادی۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ہمارے یہاں 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے، ہم کو اس کی شادی کرنی ہے، لہٰذا ہم تو اس کے بعد ہی حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ایک الگ مسئلہ ہے اور حج ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے یا اتنا ہے کہ جس سے یا تو وہ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے یا وہ حج کر سکتا ہے، دونوں کام میں سے ایک کام وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ پہلے بیٹی کی شادی کر لے، پھر اللہ اگر اس کو نوازے تو پھر حج کر لے گا۔ لیکن کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ بچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹی کے رشتے کے تلاش میں اور انتظام میں لگا ہوا کہتا ہے بیٹی کی شادی کے بعد ہی حج کریں گے، تو وہ بھی بہت بڑی غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے اور بہت غلط کام کر رہا ہے۔ وہ بیٹی کی شادی اپنے وقت پہ ہوگی، جب اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، جوڑا آئے گا اس کا تو ہو جائے گی۔ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ حج کر کے چلے آئیے۔ بیٹی کی شادی کسی کے فریضے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اس کو خیال کریں، اور حج ایک بڑا عمل ہے اور اس کو اہتمام سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ شکریہ سر۔